Hello dear student, how are you? In this video lecture, I am going to discuss second very important compound of deep log element, that is K2Cr2O7, potassium dichromate. I have discussed in my previous video lecture about potassium permanganate. Similar, by the same way, it is also compound of chromium that belongs to deep log. First of all, about its preparation process. It is prepared from chromite ore. Chromite ores. Its formula is FeCr2O3. Either you can say FeCr2O3 or simply FeCr2O4, as you like. Okay. And how will you prepare? See recursion. See, it's FeCr2O4 plus Na2CO3 plus O2. Then the formation of sodium chromate take place. Na2CrO4 plus Fe2O3 plus the removal of carbon dioxide. Okay, this one. This is the chromite ore heated with Na2CO3 in the presence of O2. Then sodium chromate is formed. This is known as sodium chromate. Okay. Balancing do by yourself. In second step, sodium chromate is treated under acidification. Means इसका acid से reaction कराएंगे, acidification. And for your better ingestion, you can use this one in ionic form. किसी रिएक्शन को प्रॉपर बैलेंसिंग स्टेट में लाने के लिए उसका शॉर्ट फॉर्म जरूरी होता है, और रिएक्शन को आजकल मोस्टली आयनिक स्टेट में लिखते हैं. उन कंपोनेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती जो केवल उस कंपोजिशन के रूप में अटैच तो रहते हैं, एक कंपोजिट कंपोनेंट में अटैच तो रहते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है. तो सोडियम क्रोमेट को यदि हम आयनिक स्टेट में लाएं तो क्या बचेगा? CrO4. CrO4 -2. It is treated under acidification. And in reaction it is treated with a suitable acid. Then it used to convert into dichromate plus CrO4 -2 used to convert into Cr2O7 plus H2. Balancing do by yourself. And this is, it is dichromate. Simply you can write it as a molecular state. और इसको जब हम molecular state में लिखेंगे तो देखिए इससे कितने सोडियम को टर्मिनेट किया था? 2. तभी तो -2 था. और कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्टेट में लाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? Na2Cr2O7. This is the sodium dichromate is going to form. ये आयनिक स्टेट है, मॉलिक्यूलर स्टेट में ये होगा. एंड नाउ इन थर्ड स्टेट, this sodium dichromate treated with potassium chloride, then it used to convert into potassium dichromate along with the byproduct KCl. This is your potassium dichromate. It is said to be, it is considered, it is remarked as potassium dichromate. Clear? This is the, ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है और इसका ऑरेंज क्रिस्टल,
orange crystals. Okay, this is the preparation process. How will you prepare potassium dichromate from the chromite ores? And chromite ores, either you can write this or this. There should be no need of confusion. Okay, now about its chemical properties. To discuss basically about the chemical properties, it is necessary to guess about the nature of K2Cr2O7. Dear student, it is also a good oxidizing agent. केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करना है. This is very very important for competitive exam as well as academic exam. Then first of all about its nature. It used to work as good oxidizing agent only in acidic medium. Acidic medium means only along with acid. See, अल्टीमेटली यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करता है एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम इसका हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव इट्स सेल्फ रिडक्शन. सो इट इज अलाउड टू रिएक्ट विथ एनी suitable acid just like H2SO4. Then what will form? K2SO4 plus Cr2SO4 whole thrice plus H2O or plus nascent oxygen. This K2SO4 Cr2SO4 whole thrice plus H2O plus nascent oxygen. यहाँ क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, and here the oxidation state of chromium is +3, not 6, sorry, +3. It used to indicate that the decreasing order of positive oxidation number used to indicate about its self reduction. और दूसरे इसकी पहचान कर सकते हो नेसेंट ऑक्सीजन निकलना, ये भी इंडिकेट करती है इसके किस चीज को? सेल्फ रिडक्शन. ओके, और इससे मेरी आयनिक स्टेट में हमें कन्वर्ट करना हो, आयनिक तो बहुत इजी, क्या हटा दीजिए Cr2O7 -2 प्लस H पॉजिटिव, यहाँ SO4 को हटाएंगे, ये पूरा पूरा चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? Cr+3 SO4 यहाँ चला जाएगा, H2O and nascent oxygen. It becomes so easy. Cr2O7 -2 plus H positive keeps out Cr+3 plus H2O plus nascent oxygen. It is better thing. अब ये जिससे रिएक्शन करेगा एसिडिक मीडियम में, ये nascent oxygen उसको ऑक्सीडाइज कर देगा and as a byproduct Cr+3 and H2O is formed. Clear? This is the view. अब देखिए इसके रिएक्शन लिखते चले जा रहे हैं सेम. अब लॉजिक हमें मिल गया, कोई टेंशन नहीं. जैसे रिएक्शन विद नाइट्राइट, you can take any one nitrites and nitrite used to oxidize into, अब इसको आयनिक स्टेट में लिखेंगे Cr2O7 प्लस H पॉजिटिव. सेम है, क्योंकि के में आप कोई चेंजेस होना नहीं था, SO4 कोई चेंज होना नहीं था, ये पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया, और जहां चेंजेस होना था 2000% ही है. तो यहाँ क्या? नाइट्राइट यूज्ड टू ऑक्सीडाइज इनटू नाइट्रेट, बाय प्रोडक्ट Cr+3 प्लस H2. बैलेंसिंग 2/4 से नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन किसमें हो गया? नाइट्रेट में. बाय द सेम वे रिएक्शन विद सल्फाइड्स, जितने भी सल्फाइड होते हैं उनकी रिएक्शन किसमें हो जाएगी? सल्फेट में. ऑक्सीडेशन हो जाएगा सल्फेट में. कब? किसी भी मेटल का सल्फाइड हो, लेड सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड एंड सो ऑन. एज हमने ले लिया लेड सल्फाइड एंड इट इज लेड सल्फाइड ले लो, सोडियम सल्फाइड ले लो, कोई भी, एंड अलाउ टू इंटरेक्ट विद Cr2O7 -2.
प्लस H पॉजिटिव। क्या बेटा? अब हमें पूरा पूरा क्यों लिखे, इसको भी आयनिक स्टेट में रहने दीजिए। तो सल्फाइड लिखेंगे, नहीं तो रिएक्शन और लंबी हो जाएगी। तो सल्फाइड यूज टू कन्वर्ट इनटू सल्फेट प्लस Cr+3 प्लस H2। हम इसमें लेड सल्फाइड लिखते हो तो लेड सल्फेट, फिर इसको भी कंप्लीट पोटेशियम लाना पड़ता, तो रिएक्शन लेंथी हो जाती। तो इट इज बेटर फॉर यू एंड बैलेंसिंग डू बाय योरसेल्फ। सम ऑफ द मोर रिएक्शन। Number 4, reaction with ferrous, same logic, Fe+3 और ये क्या लेंगे Cr2O7 -2 और प्लस H पॉजिटिव। ये किस में हो जाएगा आयरन का ऑक्सीडेशन? फेरिक में। इसका रिडक्शन हो जाएगा Cr+3 एंड प्लस H2। दिस इज द सॉरी यहाँ पे 2 है फेरस एंड दिस इज नोन एज फेर और दिस इज सेड टू बी फेरस। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और इसका रिडक्शन हो रहा है। फिफ्थ, रिएक्शन विद स्टेनस। बेटा किसमें इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा? स्टेनिक में। स्टेनिक में Sn+2 इसका स्टेनिक में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओके, स्टेनस और उसका आयनिक फॉर्म में Cr2O7 -2 प्लस H पॉजिटिव गिव्स आउट Sn+4 प्लस Cr+3 and plus H2O. This one is said to be stenic और this is read as steinous। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन विद H2S। अब H2S से रिएक्शन कराते हैं। सोई जी सल्फर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये Cr2O7 -2 और प्लस H पॉजिटिव गिव्स आउट, सल्फर में ऑक्सीडेशन हो जाएगा Cr+3 और प्लस H2। सल्फर यहाँ -2 है और सल्फर यहाँ 0 हो गया। इसमें इंडिकेट कर रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका Cr+3 में +6 है और +3 में रिडक्शन हो रहा है। बैलेंसिंग डू बाय योरसेल्फ। सेवेंथ, रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड। आई होप एवरीबडी नो सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब किससे कराएंगे? डाइक्रोमेट in ionic state, then SO2 used to oxidize into ASO3। ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन गेन हो रही है प्लस Cr+3 प्लस H2। इसका ऑक्सीडेशन सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड और Cr2 का यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ +3 है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्लियर? Some of more reaction. Reaction with halide. Any one halide, just like chloride। बेटा आपको मालूम है किसी हैलाइड का ऑक्सीडेशन किसमें हो जाता है? हैलोजन मॉलिक्यूल इन एसिडिक मीडियम। इसका ऑक्सीडेशन क्लोरीन मॉलिक्यूल में हो जाएगा और ये रिडक्शन हो जाएगा +3 के फॉर्म में प्लस H2। माइनस से 0 बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? 9th, रिएक्शन विद सपोज रिएक्शन विद हम कार्बन मोनोऑक्साइड, देन व्हाट हैपेंस? Carbon monoxide will oxidize into carbon dioxide plus H positive। CO used to convert into CO2, okay, plus chromium +3 charge और plus H2O। ओके, ऑक्सीडेशन हो गया और इसका रिडक्शन। 10th,
10th, reaction with oxalate. This is known as ऑक्सीलेट। बेटा इसका ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा किसके द्वारा? बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीलेट C2O4 -2 प्लस Cr2O7 -2 और प्लस H पॉजिटिव, क्या बन जाएगा यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड में और डाइक्रोमेट का रिडक्शन Cr+3 and plus H2। Hence you can notice there are a lot of reaction। किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कराना है तो that oxidation is possible under this। Okay, hence it is clear that potassium dichromate also a good oxidizing agent। ये भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है। क्लियर? इसी के साथ आज ये वीडियो लेक्चर यहीं पर ओवर होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थैंक यू।